Hello everyone, how are you all? Fine? Good. Dear children, today we will learn about animals. Dear children, you have seen many animals around you. They are of different sizes, different colors. Their habit is also different. You know very well they are living being. They are living being like us. They can move, they can breathe, they can walk, they can eat. So they are living beings. So they also have feelings like us, like happy, सैड, एंगर, ये सारी फीलिंग्स वो भी फील करते हैं. जब आप उनके साथ प्यार करते हो, बिल्कुल लव से रहते हो उनके साथ, वो भी अपना लव आपके लिए शो करते हैं. अगर आप उनको टीज़ करते हो, उनके प्रति एंग्री होते हो, उनको हार्म करते हो, तो उनको भी गुस्सा आता है और फिर वो भी आपको हार्म पहुंचाते हैं. आपने देखा है ना, मंकी को अगर टीज़ कर दो तो वो भी आपको काटने को दौड़ेगा. ऐसे ही डॉग है, आप उसको प्यार से कुछ खिलाते हो तो वो भी अपना लव आपके प्रति शो करता है. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट एनिमल्स. सी दिस पिक्चर. व्हाट इज आवर टॉपिक? आवर एनिमल फ्रेंड्स. टुडे वी विल लर्न अबाउट animals. So according to their food habits and their habitat, we categorize them in different categories. Animals are of different categories, but today in this lesson we will learn about only 3 kinds of animals. So dear children, today in this chapter we will learn 3 kinds of animals: wild animals, domestic animals and pet animals. Wild animals. वाइल्ड एनिमल्स का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके माइंड में किन एनिमल्स का नेम आता है? लायन, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, जेब्रा, फॉक्स, हाइना. देयर आर सो मैनी वाइल्ड एनिमल्स. यू नो वेरी वेल दैट दीज आर द वाइल्ड एनिमल्स. आपको वाइल्ड एनिमल्स के नेम को अच्छी तरह से पता है. देन द सेकेंड वन इज डोमेस्टिक एनिमल्स. थर्ड वन इज पेट एनिमल्स. Here in this chapter I will clear your doubt about the domestic animals and pet animals. Here sometimes we are very confused what are domestic animals and what are pet animals. Domestic animals, you know the name of domestic animals very well, like horse, camel, goat, sheep, hen. These are the domestic animals. And the pet animals, dog, cat, rabbit, tortoise, parrot. So such animals are pet animals. These are the names of the animals. Today we will learn the definition also. We will know the categorization of these animals. So let's learn about these. Okay children, first we will learn about wild animals. See this picture. What will you remind after seeing this picture? It is a jungle scene, and the animal you can see in this picture are wild animals. So this is a picture of wild animals that lives in jungle or forest. Let's learn about wild animals. See, wild animals that live in forest, that live in the forest. So wild animals live in forest. This is the first characteristics that you find. What are wild animal? The wild animal that live in the forest, that live in the jungle, mountains, that are called wild animal. Now the second one is, tell me. The second one is that cannot be tamed by human beings. Tamed means पकड़ना, जिनको आप नहीं पकड़ सकते. ह्यूमन बींग जिनको पकड़ के पेट नहीं बना सकते, बहुत कम 1% ऐसा होगा. जैसे लायन, टाइगर को. क्या आप लायन को अपने घर में रखना पसंद करोगे? नहीं, लायन हम नहीं रख सकते.
बिकॉज लायंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल्स और हमें उनसे डर भी लगता है. सो दे कैन नॉट बी पेट एनिमल्स. सो दीज आर वाइल्ड एनिमल्स. वो एनिमल्स भी हमारे साथ रहना नहीं पसंद करते. उनको बहुत खुला स्पेस चाहिए होता है. वो अपने हैबिटेट में ही रहना पसंद करते हैं. सो द वाइल्ड एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट and that cannot be tamed by the human beings are called wild animals. So these are the most two characteristics of wild animals. First one, they live in the forest, and the second word, cannot be tamed by the human being. These are called wild animals. So let me give the examples of wild animals. You know very well about the name of wild animals, that are lion, tiger, fox, deer, giraffe, zebra, deer, elephant. There are so many animals who lives in jungle, who lives in forest. They want the open space. They live there happily. They are very strong and powerful. So the wild animals live in forest. Let's learn about some wild animals. वाइल्ड एनिमल्स का नाम लेते ही जिन एनिमल्स का ध्यान आपको सबसे पहले आता है, जैसे कि लायन, टाइगर, तो आज हम उनके बारे में कुछ जानेंगे. सबसे पहले सी द पिक्चर. इन दिस पिक्चर देयर इज अ lion. You know about lion? Lion have golden fur. Yes, they are very strong and powerful animal. Lion is also called the king of jungle. Lion को king of jungle भी कहा जाता है. You love to see the lions in the zoo, wildlife sanctuaries. आप उनमें उसको देख सकते हो lions को. जू में आपने देखा होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कभी कोई घूमने गए हो तो आपने वहाँ पर उसको लायन को देखा होगा. सो इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल एंड द किंग ऑफ जंगल. लेट्स सी दिस पिक्चर. दिस वन इज टाइगर. टाइगर आर ऑल्सो वाइल्ड एनिमल्स. यू ऑल्सो नो अबाउट टाइगर्स. Tiger is the national animal of India. Tiger is our national animal. They also brave and powerful. They are very strong, smart, but they want to live alone. They do not want to live in the groups. उन्हें ग्रुप में रहना इतना पसंद नहीं है. वो अकेले रहना पसंद करते हैं. They hunt at night and rest during the day. उनको रात को हंट करना पसंद है और दिन में वो आराम करते हैं. दे आर गुड स्विमर ऑल्सो. स्विमिंग भी बहुत अच्छी करते हैं. दे आर वेरी फास्ट एंड गुड स्विमर्स. तो टाइगर इज ऑल्सो आर नेशनल एनिमल. नाउ सी दिस एनिमल. दिस वन इज फॉक्स. यस, this is fox. It is also a wild animal. It is a small but very clever and smart animal. It eats fruits, small animals, insects, etc. You know the story of fox and the grapes. आपको पता है fox and the grapes की स्टोरी आपने सुनी है ना. उसमें fox कितनी क्लेवर, वो सच में बहुत ही क्लेवर होती है. So fox is a very clever and smart animal. It eats fruits and small animal. Let's learn about bear. See this picture. Bear is a very cute animal. You like the bear? Teddy bear भी हम बहुत खरीदते हैं because we like bears. It have a strong body but small eyes. Bear are both plant eater and flesh eater. They love to eat honey, fish, fruits. You know they are good climber and swimmer. आप पता है वो पेड़ पे एकदम ऊपर चढ़ जाते हैं क्योंकि they are good climber. See this picture. This is giraffe. Giraffe is the tallest animal in the world. आपको पता है सबसे tallest animal है. कैसे? क्योंकि इसकी legs भी बहुत लंबी होती हैं और इसकी neck, बिकॉज ऑफ इट्स नेक, इट इज़ द टॉलेस्ट एनिमल. इसकी नेक कितनी लंबी होती है. विद द हेल्प ऑफ इट्स नेक ये बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके पत्तों को भी खाता है
ये इसका फेवरेट फूड होता है, ये ग्रास लीफ ये सब खाता है। और ये खड़े होके ही सोना पसंद करता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि खड़े होके सोने से इसको लगता है कि वो स्पीड से भाग सकता है, कोई इस पे अटैक करे। जब ये बिल्कुल रिलैक्स फील करता है तभी ये आराम से लेट कर सोता है। ये बैठ के लेट के भी सो सकता है, बट दे प्रेफर टू स्लीप ऑन स्टैंडिंग अप to save their self. Zebras have black and white stripes. Elephants are the biggest land animal. You know, elephants are the biggest land animal. Biggest, बहुत बड़ा land animals. And deer have beautiful horns. In this way, there are so many characteristics of different animals. So wild animals are also very important for us. You know. क्या आपको पता है वाइल्ड एनिमल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे कीप द जंगल क्लीन, दे ऑल्सो हेल्प अस इन बैलेंसिंग द लाइफ। आपने फूड चेन पढ़ा है, फूड चेन में कैसे डियर को लायन खाता है, डियर ग्रास खाता है और उसको कोई और बड़ा जानवर खाता है। इस तरह से एक सर्कल बनता है जिसको फूड चेन कहते हैं। सो ये भी सर्कल बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, नेचर को बैलेंस करने के लिए। सो द वाइल्ड एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू balance the life. So we should not harm the wild animal. We should also show our love and we also protect them. Let's learn about domestic animals. See the given picture. In this picture some animals are given. Tell me the name of the animal you can be seen in this picture. Letter cow, buffalo, goat, yes, hen, good, pig, yes, these are the domestic animals. Now we will learn about domestic animal. Let's learn first the definition of domestic animals. So dear children, according to definition, what are domestic animals? Domestic animals are the animals that are kept in the farms, जिनको फार्म हाउस में रखा जाता है, that are kept in the farms. And the second one is the animals that are kept in the farms. This one is the first characteristics. And the second one is that are very useful for human being, जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं, जिनसे हम काम लेते हैं. सो दे आर वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस. So domestic animals that are kept in the farms and also very useful for human beings are called domestic animals. Let me tell the examples of domestic animals. Some examples of domestic animals are cow, buffalo, goat, camel, horse, sheep. These are the some examples of domestic animals. Now let's learn about their usefulness, how they are useful to us, what they give us and how they help us. Now let's learn one by one. In this picture, 3 animals are given. Find out, tell me the name. These are horse, camel, donkey. All 3 animals are also very useful to us. How? Let's know. Horse. Horse is useful to carry loads. Donkey are also used to carry loads. And the camel. Camel is also called the ship of desert. In desert area where it is very difficult to carry loads and going to one place to another, camel help us there. In desert area they help us because the body of the camels are different. आपको पता है उसके एक हम्प होती है जिसमें वो अपना फूड वाटर स्टोर कर सकता है.
कैमल जो है काफ़ी टाइम तक पानी पिए बगैर रह सकता है। डेजर्ट में बहुत गर्मी होती है, वहाँ हमें प्यास भी लगती है, लेकिन कैमल ऐसा जानवर है जो डेजर्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, वहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेता है, तो इसलिए वो उसको ज़्यादा प्यास नहीं लगती। उसके फुट ऐसे बने होते हैं, पैडेड फुट होते हैं उसके, तो सैंड जो होती है वो बहुत गर्म हो जाती है, लेकिन जब वो कैमल है उसके पैर की शेप ऐसे बनी होती है, उसको इतनी गर्मी नहीं लगती। तो वहाँ पर हम उसको एज अ व्हीकल लगा लो, क्योंकि व्हीकल्स भी वहाँ पर चलने बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पर हम कैमल्स का यूज़ करते हैं। कैमल्स को आप राइड के लिए भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे बच्चों ने कैमल राइड भी की होगी। तो दीज आर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड फॉर दीज पर्पसेस। कैमल का मिल्क, राजस्थान में आप देखना कैमल को मिल्क के लिए भी रखा जाता है, वहाँ पर कैमल मिल्क ही ज़्यादा बिकता है और यूज़ किया जाता है। हॉर्स राइड भी आपने की होगी, हॉर्स को राइड के लिए भी रखा जाता है। और हिली एरियाज़ या ऐसी एरिया जहाँ पर व्हीकल्स नहीं चलते या फिर जहाँ पर पहुँचना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, वहाँ पर हम डोंकी है, हॉर्स है, ऐसे एनिमल्स का यूज़ करते हैं जो हमारे सामान को वहाँ पर बड़ी ईज़िली पहुँचा देता है दूसरे एरियाज़ तक। और वहाँ पर जैसे आपको चलना, वैष्णो देवी आप लोग गए होंगे, वहाँ पर देखा होगा कितने हॉर्सेस को यूज़ किया जाता है। आपसे इतनी लंबी यात्रा पर नहीं चला जाता, तो हॉर्स आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में हेल्प करते हैं। और सामान भी देखा होगा आपने, उसके दोनों साइड पे कैसे वो एक नेट से बना देते हैं, उससे में सामान रखते हैं, तो वो सामान को भी हमारे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में हेल्प करते हैं। सेम थिंग विद द डोंकीज आर ऑल्सो यूज टू कैरी लोड्स. So all these three animals are also useful to us. Now in this picture also three animals are given, that is cow, buffalo, goat. All three gives us milk. हम मिल्क पीते हैं, काऊ मिल्क भी पीते हैं, हम बफलो मिल्क भी पीते हैं, हम गोट मिल्क भी पीते हैं। आपको पता है बकरी का दूध कितना हेल्दी होता है, सेम काऊ का मिल्क भी हेल्दी होता है। बफलो का मिल्क थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग थिक होता है, बट इट इज़ ऑल्सो हेल्दी फॉर अस। हम इन तीनों एनिमल्स का मिल्क पीते हैं, सो दीज आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस। नाउ लर्न अबाउट बुल. Bull is the male of the cow family. It is very strong and powerful. It help us in plugging fields by pulling cart. आपने देखा होगा ऑक्स या बुल कार्ट को पुल करते हैं। जो फार्मर्स हैं वो बुल की हेल्प से प्लग करते हैं फील्ड को, सो दे हेल्प the farmers also. They are very strong animal. It is very hard working and helpful animal also, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड वर्किंग होता है, काफ़ी लंबे समय तक लगातार काम करते रहता है। सो इन दिस वे बुल हेल्प अस. नाउ लेट्स लर्न अबाउट sheep. Sheep is a very soft and cute animal. It is also a farm animal. It gives us wool, and with the help of its wool we make sweaters, jackets. It has thick wool on its body. उसकी बॉडी आपने देखी होगी शिप की, उस पर वूल होती है, वो बहुत ही थिक होती है। उसको रिमूव किया जाता है वहाँ से, और उस वूल की हेल्प से हम स्वेटर्स बनाते हैं, जैकेट्स बनाते हैं, जो हमें सर्दी से बचाते हैं, हम सर्दी में पहनते हैं उनको। सो sheeps also eat grass. They are very calm and gentle animal. They are lovely animal that help us in many ways. So dear children, in this way domestic animals are very helpful to us. They are also called farm animals. They are very friendly and helpful to us. So we should also take care of them and give them food and water. They are very useful in our daily life.
some give us milk, some help in carrying loads, some helps the farmer to plug the field. So they help us in many ways. So we should be kind with them. We should never beat them. We should love and protect our domestic animals, our farm animals. Now let's learn about our pet animals. Pets, so cute. You know about the pet animals? The animals that are kept inside the house, जिनको हम अपने हाउस के अंदर रखते हैं. That are kept inside the house for our pleasure आर कोल्ड पेट एनिमल्स. पेट एनिमल क्या होते हैं? जिनको हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए अपने साथ रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके साथ लव अपना शो करते हैं, वो हमारे साथ खेलते हैं. तो दीज आर कॉल्ड पेट एनिमल्स हु लिव्स विद अस एट आवर होम्स. You also know the name of the pet animal? Yes, tell me the name of the pet animal. You see cat, dog, parrot, rabbit. These are the most common pet animals. Everybody wants to with them. जो सभी अपने साथ अपने घर में, आपने देखा होगा मोस्टली डॉगीज़ को रखते हैं. आपने देखा होगा सम पैरट्स को भी रखते हैं, कुछ कैट को. तो दीज आर द पेट एनिमल्स. फर्स्ट नो अबाउट डॉग्स. यू नो वेरी वेल, डॉग्स आर वेरी लॉयल. वो अपने ऑनर के लिए बहुत ही लॉयल होते हैं. डॉग्स मेक एक्सेलेंट पेट ड्यू टू देयर लॉयल्टी. इसी वजह से उनको एक्सेलेंट पेट, सबसे ज़्यादा उसी को, डॉग को ही रखना लोग पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ देयर लॉयल्टी, देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट. दे प्रोवाइड ऑल्सो इमोशनल सपोर्ट. दे ऑल्सो इंक्रीज सोशलाइजेशन. आप डॉग को वॉक करने पे लेके जाते हो, वहाँ पर आपको भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, इससे आपका सोशलाइजेशन हो जाता है. सेंस ऑफ सिक्योरिटी. डॉग्स को रखते हो तो आपके अंदर एक सिक्योरिटी आती है, क्योंकि डॉग्स कभी भी अपने ओनर को हार्म नहीं होने देगा. वो खुद हार्म हो जाएगा जब भी कोई भी खतरा देखता है, लेकिन वो अपने ओनर को नहीं होने देगा. इसीलिए उसको सबसे लॉयल एनिमल कहा जाता है. उसकी सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. तो इस तरह से डॉग जो है वो हमारे घर को भी, घर की भी रखवाली करता है और हमारी भी. डॉग्स आर वेरी लॉयल टू अस. नाउ कैट्स. कैट्स आर ऑल्सो मेक वंडरफुल पेट्स ऑफरिंग कंपेनियनशिप एंड एंटरटेनमेंट विद रिलेटिवली लो मेंटेनेंस. मतलब इनको रखने में हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं होता. लो मेंटेनेंस से हम इनको अपने पास रख सकते हैं कंपेयर टू अदर एनिमल्स. दे ऑल्सो प्ले विद अस. दे लाइक टू लिव इनसाइड द हाउस. सो दे आर ऑल्सो एज अ पेट वंडरफुल पेट्स. Now let's learn about parrots. See, parrots are very beautiful and colorful birds. They can be good pets. Because they can friendly and smart. Parrots can learn to talk and copy our वर्ड्स. आपने देखा होगा कि पैरट्स जो हैं वो बात करना बहुत पसंद करते हैं. कुछ कुछ वर्ड्स को वो सीख भी लेते हैं और हमारे साथ उन वर्ड को बोलते हैं. जो कुछ हम बोलते हैं, कई बार वर्ड्स उनसे बुलवा के देखते हैं तो वो उन वर्ड्स को कॉपी करते हैं. दे लव टू प्ले एंड स्विंग्स इन द केज. दे ऑल्सो नीड लव एंड केयर. उनको भी प्यार और केयर की ज़रूरत होती है, दूसरे एनिमल्स की तरह सभी को ही होती है. चाहे हम इंसान भी क्यों ना हो, लव और केयर सबको चाहिए होता है. कोई हमसे लव और केयर शो करता है तो हम भी उसके लिए शो करते हैं. सेम विद द एनिमल्स. दे ऑल्सो हैव द फीलिंग्स. सो हैविंग अ पैरट एज अ पेट इज़ फन एंड एक्साइटिंग.
सो पैरट को तुम एज अ पेट रखते हो तो वो तुम्हारे लिए फ़न भी है, तुम्हारे लिए एक्साइटेड भी है, एक्साइटिंग भी है, क्योंकि आते जाते तुम उससे बोलते हो तो वो भी तुमसे बोलना पसंद करता है, तो वो फ्रेंडली नेचर का है, स्मार्ट भी है। तो इस तरह से पैरट भी एज अ पेट बहुत ही अच्छा बर्ड है। So dear children, it is about pet animals. Pet animals are those animals that are kept with us at our homes. They are friendly in nature. They guard our house, protect us. They entertain us. We kept them in our houses for our pleasure. So these are called pet animals. Okay children, now today in this lesson we have learnt about three types of animals: wild animals, domestic animals and pet animals. Now I am summarizing this lesson. Wild animals that live in the फॉरेस्ट, जंगल, जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, एंड डेट कैन नॉट बी टेम्ड बाय द ह्यूमन बीइंग, जिसे ह्यूमन बीइंग नहीं पकड़ सकते, डेट आर कोल्ड वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, फॉक्स, जेब्रास, दीज आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स डेट आर वेरी यूजफुल फॉर अस एंड डेट केप्ट इन द फार्म्स, जिनको हम फार्म्स में रखते हैं और हमारे लिए यूज़ करते हैं. दे आर यूजफुल अस इन मैनी वेज लाइक प्लगिंग फील्ड्स, कैरी लोड्स, गिविंग मिल्स. इन दिस वे दे हेल्प अस. So these are called domestic animals like camel, horse, elephant, cow, buffalo. Okay. Now the third one is pet animals. The animals that are kept at our homes for our pleasure, for our entertainment, जिनको हम अपनी खुशी के लिए, अपने entertainment के लिए अपने साथ रखते हैं, उनको क्या कहते हैं? Pet animals like dog, cat, rabbit, parrots. These are the pet animals. Hope you have learned very well about these three kinds of animals. So dear children, animals are also living beings, you know, they have also feeling. So we should show our love with them. We should not harm them. We should never beat them. We should not tease them. हमें भी उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनके साथ प्यार से रहना चाहिए. जैसा हम अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, तो हमें भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए. तभी वो भी आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, आपके प्रति अपना लव वो भी शो करेंगे. बल्कि वो तो बहुत ही अच्छे होते हैं एनिमल्स, आपके लिए अपनी जान लगा देंगे, लेकिन आपको हार्म नहीं होने देंगे अगर आप उनको लव और रिस्पेक्ट उनकी भी करते हो तो. सो हमें एनिमल्स की टेक केयर करनी चाहिए, उनको खाना भी देना चाहिए, उनको पानी देना चाहिए, उनको एक सेफ प्लेस देना चाहिए रहने के लिए, और ख़ुद तो उनको हार्म बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहिए. उनके शेल्टर की भी केयर करनी चाहिए. ओके, नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे.